Hello dear students, today we are starting with the topic of group 18 noble gases. This is again a part of p block element, last part of p block element group 18, which are also known as noble gases or inert gases, है ना? These are also known as noble gases or inert gases. Why? Because see here, its valence shell configuration is completely filled. We know that in s orbital 2 electrons are there and in p orbital 6 electrons are there. Okay, so accordingly ns2 and p6 have been completely filled, so these are inert, means they are non-reactive. Okay, these are all non-reactive. So first member of this family is helium with the configuration of 1s2. Okay, next member comes the neon with atomic number 10. Okay, and its configuration is, first we will write the first noble gas configuration of helium, which contributes 1s2 electrons, and then comes 2s2 and 2p6. Okay, total of 10. 6 plus 2 plus 2, 10. Then comes argon with atomic number 18. Nearest noble gas is neon, which contributes 10 electrons. Okay, so 10 plus 2 plus 6 is equal to 18. So 3s2 3p6 is the valence shell configuration of argon. Then comes krypton with atomic number 36. Nearest noble gas is argon with atomic number 18. Then comes, after 3p6, 3d orbital will be completely filled, so 3d10. Then comes 4s2 4p6. Okay, then comes xenon with atomic number 54. Nearest noble gas is krypton with atomic number 36. So next shell completely filled will be 4d10, 4s2 and 5p6. And then comes radon with atomic number 86, which is highly radioactive. Xenon, its nearest noble gas with atomic number 54, and it contributes to 4f14 orbital. Okay, 4f14 will be completely filled, because after d10, which subshell is there, f subshell is there, so 4f14, then 5d10, 6s2 and 6p6. So accordingly we can see down the group number of shell increases and all are completely filled, and so they are inert, or we can say they are non-reactive, means they do not take part in reaction. Next is occurrence. How do these noble gases occur, or where they occur? They occur in atmosphere in free state. Okay, why? Because their valence shell electron is completely filled, so they will occur in free state, है ना? जैसा ओरिजिनल उनका फॉर्म है वैसे वो ऑकर करेंगे. हीलियम के फॉर्म में, नियॉन के फॉर्म में ऑकर करेगा, बिकॉज दे आर इनर्ट, मतलब कोई कंपाउंड नहीं बनेगा उनका इन एयर. ओके, एक्सेप्ट रेडॉन इज एन एक्सेप्शन. वाई? बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव मीन्स इट इज कंटिन्यूएशन इन रिएक्शन, मीन्स कुछ ना कुछ एमिशन चलता रहेगा अल्फा बीटा का, तो उसका जो रेडॉन का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज होता रहेगा, है ना? क्योंकि अल्फा अगर उसने एमिट किया तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, बीटा एमिट किया तो चेंज हो जाएगा. तो बीइंग अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है या फिर उसका जो फ्री स्टेट है, इट डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट. ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ देख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स का कितना है नियर अबाउट. तो नियर अबाउट इन, दिस इज नियर अबाउट साइन. So near about 1% in dry air. Okay, argon कितना कंट्रीब्यूट करता है? मेजर इज argon इज नियरली इक्वल टू 0.93% आता है. ओके, ड्राई एयर में argon कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.93%, 0.93%. हीलियम किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन नेचुरल गैस. ओके, कितना है परसेंट? 2 to 7% है नेचुरल गैसेस में. ओके, और भी है कुछ कंपाउंड जिनमें ये प्रेजेंट है, जैसे कि हीलियम एंड नियॉन फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन. ठीक है, उसमें मिले हैं ये. हम क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनली मैक्सिमम परसेंटेज में वो फ्री स्टेट में ही ऑकर करेंगे, पर
साइंटिस्ट ने कुछ ढूंढे हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें उनको हीलियम और नियॉन के मिनरल्स भी ओर्स भी मिले हैं। कौन से मिनरल्स में मिले हैं? पीच ब्लेंड, ओके, नाम ध्यान में रखना है, पीच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट, ओके। इन मिनरल्स में हीलियम और नियॉन के कुछ ट्रेसेस या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ हीलियम एंड नियॉन इज प्रेजेंट। जेनॉन और रेडॉन कैसे है? दे आर द रेयरेस्ट एलिमेंट, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट जेनॉन और रेडॉन है। और रेडॉन अगेन रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226, ओके। रेडॉन जो है वो किसका डीके प्रोडक्ट है? मीन्स इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226, ठीक है। रेडॉन का कितना है मास? 222, ओके। तो इसका डीके प्रोडक्ट है रेडॉन, ओके, रेडियम का। तो दिस वाज अबाउट द ऑकरेंस। नेचुरली फ्री स्टेट में ऑकर करते हैं। एयर में एर्गॉन 0.93% है। नेचुरल गैसेस में हीलियम 227% है। हीलियम और नियॉन कुछ मिनरल्स में भी दिखे गए हैं जैसे कि पीच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट। और जेनॉन और रेडॉन कैसे एलिमेंट है? रेयरेस्ट एलिमेंट है। एंड इट इज अ रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, जैसे यूरेनियम, रेडियम है, उस टाइप के कंपाउंड्स का डीके प्रोडक्ट है रेडॉन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस सबको मालूम है कि डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स, बराबर है। शेल नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। हमने देखा 2s2, 1s2 के बाद में 2s2, 3s2, 6s2 तक गया है, 6 पीरियड तक। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड अक्रॉस द पीरियड इट डिक्रीजेस, ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, इट डिक्रीजेस अगेन डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ओके। सेम ट्रेंड रहने वाला है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, राइट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके। इसके लिए भी वही सेम ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। सेम ट्रेंड है, बाकी जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट का है वैसे ही सेम इसका भी रहने वाला है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या ये एलिमेंट? नहीं करेगा, ओके। तो देयरफॉर हम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इज कम्प्लीटली फिल्ड, स्टेबल है, NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है और देयरफॉर 0 और लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज है इसकी, ठीक है। 0 है और अगर एक्वायर करना भी रहा तो उसकी वैल्यूज कैसी आएंगी? नेगेटिव नहीं आएगी, कैसे आएंगी? लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, ओके। अगर वैकेंट आगे के जो d ऑर्बिटल है जिसमें प्रेजेंट जो वैकेंट होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन आने के चांसेस है, 1-2 हम कंपाउंड्स देखने वाले हैं वो, तो वहां पर उसकी वैल्यू कैसे रहने वाली है? लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज रहने वाली है नोबल गैसेस की, ओके। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है? नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज स्टेबल NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या इसीलिए 0 और लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी। किसके इसमें लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी? इसमें MTD ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसी में सिर्फ, बाकी इसमें तो EG वैल्यू कैसी रहेंगी? 0। इसके बाद में नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी इन वाटर। दीज आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस, ओके। मोनो एटॉमिक है, मीन्स हीलियम मोनो एटॉमिक, सिर्फ He ही लिखते हैं हम, He2 वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। सो देयरफॉर दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। स्पेरिंगली मतलब स्लाइटली, थोड़ा सा वाटर में डिजोल्व होते हैं ये। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हीलियम का देखो कैसा है? हीलियम इज लोवेस्ट, सबसे ज्यादा हीलियम का लोवेस्ट है। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 4.2 केल्विन ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट अगर बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है तो हीलियम का कितना है? 4.2 केल्विन, ठीक है। ये नोट करके रखना है अच्छी से पॉइंट, MCQ क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद में ड्यू टू वैंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन दिस मोनो एटॉमिक नोबल गैसेस दे कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, गैस फॉर्म में है और गैसेस है, पर कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैंडरवॉल फोर्स, जो कि कैसा फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है ना। तो क्या होगा, अगर हमको गैस से लिक्विफाई करना है तो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो लो टेम्परेचर पे ही काम हो जाएगा। ओके, तो दे कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हेंस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, मेल्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है कि क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है। क्यों, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में तो ऑकर करते हैं, लेकिन उसमें भी वेरी वीक वैंडरवॉल फोर्स है इनकी गैसेस फॉर्म में। तो देयरफॉर एट लो टेम्परेचर, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर हम उसको देंगे या थोड़ी सी हीट देंगे तो इट कैन इजीली गेट बॉइल्ड और इजीली गेट मेल्टेड, मतलब इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, देखो इनका नेचर कैसा है। दिस आर कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक है, कलरलेस है, ओडरलेस है, मतलब कुछ भी ओडर नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है और कुछ टेस्ट भी नहीं है, एंड दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। ठीक है, ये इनका नेचर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होने वाला है। NH2NP6 है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी दे सकता है। इसके कंपाउंड्स हम नीचे पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इट इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड दस देर इज नो टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, कुछ भी टेंडेंसी होनी नहीं चाहिए क्योंकि स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट है 6 का, पी सबशेल का। तो देयरफॉर मेजर क्या बोलेंगे कि मेजर जो एलिमेंट्स है वो कैसे है, जीरो वैलेंट, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं दिखाते वो, एंड मोस्टली एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक, जैसे है फॉर्म में He, Ar, है ना, उस Ni, इसी फॉर्म में ऑकर करेंगे। तो देयरफॉर दे आर जीरो वैलेंट। एक एक्सेप्शन है इसमें भी, जेनॉन। ठीक है, जेनॉन का एक एक्सेप्शन है, इट हैज लार्ज साइज देन हीलियम से भी बड़ा है, नियॉन से भी बड़ा है, एर्गॉन से भी बड़ा है और क्रिप्टॉन से भी बड़ा है। ओके, 54 एटॉमिक नंबर। तो इसका साइज कैसा है, लार्ज है इसके बाकी इनके जो नोबल गैसेस है उसके कंपेयर में। तो देयरफॉर इट एग्जिबिट्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और दूसरा पॉइंट कि इसके पास में क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन एम्प्टी डी ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएंगे या फिर एक्साइट होके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो इसीलिए जेनॉन इज रिएक्टिव। ठीक है, बाकी रिएक्टिव नहीं है, साइज स्मॉल होने की वजह से और वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने की वजह से बाकी रिएक्टिव नहीं है, सिर्फ जेनॉन के ही कंपाउंड्स देखने को मिले हैं। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है और कौन से कंपाउंड्स है वो देख लेंगे हम। तो फर्स्ट देखो, अगर +2 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, +2, तो ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जेनॉन डाई फ्लोराइड। क्या नाम है, जेनॉन डाई फ्लोराइड। ठीक है, फिर अगर इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो यहाँ पे +2 में कैसा, ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसका -2 और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका +2। इसके बाद में +4, ठीक है, +4 फॉर्म में ये जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड बना रहा है। ओके, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ये -4, तो जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड। इसके बाद में XeOF2 का नाम क्या है, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया इसलिए जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। इसमें भी देखो, ये अगर -2 है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का तो -2 ही होता है, तो फिर इन दोनों का -2 -4, तो एक जेनॉन का क्या रहने वाला है, +4। ठीक है, तो जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड इस फॉर्म में ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, +4 का। इसके बाद में है +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, XeF6, मतलब कि जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड। इसके बाद में +6 रहेगा, अगेन +6 -6, अगेन XeOF4 में क्या है, जेनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे -4 और ये -2, -6 को बैलेंस करेगा +6। ठीक है, तो जेनॉन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। ओके, एक और है XeO3, मतलब कि जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 3 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, तो -6,
और यहाँ पे एक जेनॉन का +6, तो जेनॉन ट्राई ऑक्साइड। ओके, सबको आया समझ में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर्म किए। +2, +4 और +6 के कंपाउंड के नाम ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैस पूछा क्वेश्चन, तो तीनों का बराबर ऐसा चार्ट फॉर्म में भी बना के दिया, नाम लिखा और एक्सप्लेनेशन दिया शॉर्ट में, तो भी थियरी फॉर्म में अच्छा इजी जाता है पढ़ने को भी और लिखने को भी और समझने को भी। ओके, तो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये लोग क्या करेंगे, दीज आर केमिकली इनर्ट, तो देयरफॉर हाइड्रोजन से ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दे आर नॉट सो मच रिएक्टिव। तो थियरी पोर्शन में आपको ये सब कवर करने होंगे पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो दीज आर केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, बाकी भी जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वगैरह, तो वहां पर भी वो केमिकली इनर्ट है, तो देयरफॉर देयर ऑल्सो दे विल ऑल्सो नॉट रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन में देखो दे आर केमिकली इनर्ट, ओके, बट जेनॉन और फ्लोरीन जो है वो एट 673 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर में जेनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है। ये एक रिएक्शन है कि दो गैसेस मिलकर एक सॉलिड बना रहे हैं। सॉलिड मतलब कौन सा फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड फॉर्म बना सकते हैं। कैसे है, दिस आर कलरलेस क्रिस्टलाइन विच सबलाइम रेडिली एट 298 केल्विन, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इट गेट सबलाइम, ठीक है, गैस फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। एंड दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन इजीली निकल जाएगा इसमें से सबलाइम होने पे, तो देयरफॉर हम इसको एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी यूज करते हैं। जहाँ पे फ्लोरीन की जरूरत है वहां पर इन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। देन रिएक्टिविटी विथ मेटल्स, दे डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के साथ ये लोग डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये जो पोर्शन है 7.13 का, मतलब कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन का, ये अभी फिलहाल एक्सक्लूड किया है आप लोगों के सिलेबस में से, तो ये पोर्शन हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस। तो मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑफ एस्थमा पेशेंट, ठीक है, एस्थमा पेशेंट्स को ब्रीदिंग के लिए यूज में आता है। हीलियम और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन बाय सी ड्राइवर्स, मतलब मराइन वाटर जैसे ओशियन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी काम में आता है। फिर फॉर फिलिंग बलून्स, बलून्स में भी हीलियम और हाइड्रोजन होता है। फिर फॉर हीलियम इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग पर्पस एंड मेटालर्जी ऑफ सम मेटल्स, मतलब मेटल्स को स्टडी करने के काम में भी आता है। और वहाँ पर वेल्डिंग वगैरह के पर्पज़ में जहाँ इनर्ट चाहिए एटमॉस्फेयर, वहाँ भी हीलियम का यूज़ है। लिक्विड हीलियम इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क में भी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर भी लिक्विड हीलियम को यूज़ करते हैं। इन लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेज़र्स, ठीक है, लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री होता है, वहाँ पर लेज़र प्रोड्यूस करने के काम में भी हीलियम का यूज़ है। यूज टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स ऑफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स, ठीक है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स में भी इसका यूज़ आता है हीलियम का। यूज्ड एज अ शील्डिंग गैस फॉर आर्क वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग का ही टाइप है आर्क वेल्डिंग, उसमें शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, गैसेस को शील्ड करने के लिए यूज़ में आता है। इन सुपरसोनिक विंड टनल्स, ठीक है, विंड टनल्स होते हैं वहाँ पर भी काम में आता है हीलियम का। हीलियम न्यूक्लियस इज यूज्ड एज अ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स, बराबर है, रेडियो एक्टिविटी में भी काम में आता है। यूज्ड एज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब जहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है वहाँ पर भी हीलियम का यूज़ आता है। इमेजिंग मतलब एक कंपाउंड डिटेक्शन वगैरह में काम में आता है। फिर नियॉन इट इज़ नियॉन डिस्चार्ज लैम्प और साइंस देखे होंगे जो रोड पर बने हुए रहते हैं, वहाँ पर नियॉन के रहते हैं ताकि वो रेडियम जैसे चमके, तो आजकल नियॉन का यूज़ होता है। दिस साइंस आर विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल्सो इन मिस्ट और फॉग, ठीक है, वहाँ पे भी काम में आता है। मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हीलियम इज़ यूज्ड इन सर्टन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स एंड करंट रेक्टिफायर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के काम में भी आता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स,
इन फ्लूरेसेंट ट्यूब्स वहाँ पर भी काम में आता है। फिर आर्गॉन जो है फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर इन वेल्डिंग एंड स्टील प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्ट्रीज में वेल्डिंग और स्टील प्रोडक्शन में। फिर मिक्सचर ऑफ 85% आर्गॉन 15% नाइट्रोजन इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी आर्गॉन का यूज़ है। और बाद में इन फिलिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड रेडियो वाल्व्स, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह में भी काम में आता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मिक्सड विथ नियॉन टू गेट द लाइट्स ऑफ वेरियस कलर्स। तो बहुत जगह पर ये यूज़ में आता है। आप लोगों को ये सारे यूजेस अच्छी तरीके से समझ लेना है और याद भी करना होगा, ठीक है।